हेलो एवरीवन। आई होप कि लास्ट वीडियो का आर स्क्वायर्ड एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर एरर आपको समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रूट मीन स्क्वायर एरर इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट इज मीन स्क्वायर एरर, एम फॉर मीन squared error. Very easy. First of all, you have to see what is the error, as I have already told you, but I'll take this graph again to just let you know. Let's say this is the data set that I have. Some more points I'll show here. See, what are these points called? These point, इन point को हम क्या बोलते हैं? ये point को हम बोल सकते हैं noise या फिर outlier. Outlier या noise क्या होती है? सबसे पहले ये देख लेते हैं. Outlier का मतलब होता है जो डेटा में आपका रेंज है उससे बिल्कुल सेपरेट कोई पॉइंट है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज आउटलायर. सो आउटलायर मीन्स data very different from your actual data, from other data provided. तो अदर डेटा प्रोवाइडेड तो मुझे ये है ना, इससे कितना सेपरेट है ये. सो दिस इज आउटलायर, जो पॉइंट बिल्कुल अलग है आपका बाकी जो डेटा प्रोवाइडेड है उससे. फॉर एग्जाम्पल, हाइट की मुझे रेंज गिवन है 100 to 200 centimeter. Let's say I'm very bad in assuming all these things. I don't know how much 100 height would be, how much 200 height. I'm just taking a range, okay? And now somehow there is a person with height 50 centimeter, okay? So this will be my outlier. If all data is in this range and some point is some 50 centimeters, so that is outlier. I hope outlier and noise is now clear to you. Okay, this is my best fit line, this is my y, sorry, this is my x independent variable whatsoever, this is my x, this is my y. So this all is best fit line, right? And on best fit line I have told you we have y hat, and this is my y, this is my actual point, okay? And the distance from this to this is my error, right? So y minus y hat is my error, correct? For one point. For all points y of I to y hat of yi, right? So mean squared means क्या हुआ? What would be MSE? Mean square error. So error is y minus y hat. If you want to find square, you will put a square. Mean means you have to find the sum of all y's from I to n, right? From 1 to n. Mean means you have to find sum and then average. So this is the formula. Average of sum of squared error and then divided by the number of points, that is mean squared error. So what is the advantage of this mean squared error? Why we use it? First point is it is used in gradient descent. If you remember, what was the cost function of gradient descent? It was mean squared error only, na? That time also I told you why we are doing the square, because we don't want negative value. And why we are using this n, because uh, we want to find average means I want to find how much error is distributed, कितना error एक एक पॉइंट को आ रहा है. जैसे एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, बोलते हैं सम ऑफ मार्क्स ऑफ मैथ्स ऑफ दिस क्लास इज 100. तो इसका मतलब मुझे ये नहीं पता चला ना कि एक एक बच्चे को कितने मार्क्स आए. अगर 5 बच्चे हैं तो 20-20 आए होंगे, 6 बच्चे हैं तो ज़्यादा. वो साइज पे डिपेंड कर जाता है डेटा सेट की. लेकिन अगर हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं कि एवरेज मार्क्स इस क्लास के 20 है, तो मुझे पता है कि कितने भी बच्चे हो, हर बच्चे को 20-20 मार्क्स आए, राइट? इसलिए हम एवरेज फाइंड करते हैं, तो कि हमको एक एक पॉइंट का कितना कितना एरर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो पता चले. और ये मीन स्क्वायर्ड एरर ग्रेडियंट डिसेंट के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है. वाई? बिकॉज इट इज डिफरेंशिएबल. Why? Because we have a square here. If it is a square, you can easily differentiate it, right? If you remember, j of theta is 1 by 2m, I is equal to 1. Here m is the number of data, right? सेम, जस्ट हियर टू वी हैव एडेड, बिकॉज व्हेन यू, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो ये टू यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो ग्रेडियंट डिसेंट में हमारा ये मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत अच्छे से वर्क करता है. इसका एक एडवांटेज ये है, और दूसरा एडवांटेज है कि ये लार्ज एरर को दिखाता है, राइट? जैसे कोई, अगर मेरा एरर 0 पॉइंट, अगर मेरा एरर लेट्स से 6 है,
तो ये 6 काउंट नहीं करेगा, ये 6 का स्क्वायर काउंट करेगा, दैट मीन्स इट विल टेक इट एज 36। ओके, तो ये लार्ज एरर को पीनलाइज करता है, दैट मीन्स उसे हाईलाइट करता है। गॉट इट। और इसका डिसएडवांटेज भी काइंड ऑफ यही है, इसका डिसएडवांटेज है कि ये आउटलायर्स को बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव टू आउटलायर मीन्स अगर कोई आउटलायर आता है तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा आपका मीन स्क्वायर्ड एरर। अगर आपका एक आउटलायर है, दो आउटलायर है या ज़्यादा आउटलायर्स हैं, जैसे ये आउटलायर का ये वाई से कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, अगर ये 10 भी हुआ तो 10 का स्क्वायर 100, तो 100 एरर आ जाएगी, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सेम वे अगर ज़्यादा आउटलायर्स हैं तो ये हमारा एडजस्टेड, सॉरी, हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीन ए ई, मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट यू अंडरस्टैंड ना, जहाँ पे हम कोई भी साइन को कंसिडर नहीं करते, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको पॉजिटिव ही लेते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, एरर क्या है? सबसे पहले देखो एरर क्या है, अंडरस्टैंड इट दिस वे, y माइनस वाई हैट इज द एरर। एब्सोल्यूट फाइंड करना है, इसका ये लगा दो, एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव वैल्यू भी है तो उसको पॉजिटिव कर दो। मीन का मतलब सबका सम फाइंड करो। ओके, ये सम फाइंड हो गया और इसे एंड से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। गॉट इट। मीन एब्सोल्यूट एरर का एडवांटेज क्या है? दैट इट इज रॉबस्ट। रॉबस्ट मीन्स नॉट सेंसिटिव टू आउटलायर। अगर कोई आउटलायर है भी डेटा में तो भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि ये ग्रेडियंट डिसेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत टफ है। डिफरेंशिएशन इसका फाइंड करना, हम ग्रेडियंट डिसेंट में थीटा के साथ उसका डिफरेंशिएशन ही तो फाइंड करते हैं, वो मुश्किल हो जाएगा फाइंड करना फिर मीन एब्सोल्यूट एरर में। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इसे लीनियर रिग्रेशन में यूज़ करेंगे तो ग्रेडियंट डिसेंट विल बी लेस स्मूथ। उसका जो कर्व है जिसमें हम मिनिमा फाइंड कर रहे थे, एक पर्टिकुलर ग्लोबल मिनिमा फाइंड कर रहे थे, वो इजीली और अच्छे से नहीं आएगा क्योंकि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। थर्ड हमारा जो लास्ट है वो है RMSE। इससे भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर का रूट कर दो सिंपली, इसको मैं लिखती हूँ RMSE इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ MSC। नाउ what was MSC? MSC was, first of all, what is error? This is error. I want to find square, I'll do square. Then mean will be, first I will find sum of all and then I will find average of. This is my root mean square error. Okay, also one thing keep in mind, see, you are doing error square. If for example my dependent variable unit is centimeter, when you are doing square it will become centimeter square. So I can say disadvantage is also here, that unit will be, will change, it will be square unit. Okay, but here the thing is, in root mean you are finding root again, so if it is centimeter square, again root, it will be centimeter only. So advantage is that it will have same unit as that of the output, output का जितना यूनिट है वो सेम रहेगा। सेकेंड, डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन आप फाइंड कर सकते हैं मैथ्स में। ओके, सो इट इज वर्क्स वेल फॉर ग्रेडियंट डिसेंट, आई विल राइट। Works well for gradient descent because it is differentiable. Okay, next is, it is again same point, it will penalize large error। अगर कोई भी लार्ज एरर है तो उसको हाईलाइट करेगा, क्योंकि इसमें हम माइनस करके स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन उसी की वजह से एक डिसएडवांटेज भी आता है। इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब आप एरर को फाइंड करके उसका स्क्वायर करते हैं तो आउटलायर्स के लिए हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। उतना सेंसिटिव नहीं होगा जितना मीन स्क्वायर्ड एरर है, बट मैं लिख दूंगी नॉट रोबस्ट। मतलब अगर आउटलायर आया तो जो डेटा है, ये जो आउटपुट आ रहा है हमारा,
रूट मीन स्क्वायर एरर में वो कम्प्लीटली चेंज हो सकता है, मतलब वो अफेक्ट हो सकता है आउटलायर से। ठीक है, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करना थोड़ा इजी है। अब मैं लास्ट में समरी लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करूँ मैं, MSE, MAE एंड RMSE, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं एंड वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा मैट्रिक्स कब यूज़ करना है और आउटलायर के लिए कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है, तो इन तीनों में से आउटलायर के लिए हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर ही है। मीन स्क्वायर्ड एरर हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, क्योंकि ये ग्रेडियंट डिसेंट के लिए अच्छा परफॉर्म करता है। और RMSE हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमको डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर करना है। ओके, और इसका एडवांटेज है, या वाई में क्यों ट्रेनिंग के लिए यूज़ करना है, बिकॉज इट गोज़ वेल विद ग्रेडियंट डिसेंट। ओके, स्मूथ ग्रेडियंट डिसेंट का जो कर्व है वो आ जाता है अगर आप मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट, आउटलायर्स के लिए ये क्यों वर्क करता है, क्योंकि ये सबको इक्वल वेट देता है, राइट। इट्स नॉट स्क्वायरिंग द एरर, नॉट स्क्वायर। यहाँ पे मैं डिफरेंशिएबल भी लिख रही हूँ पॉइंट, क्योंकि स्क्वायर है तो इजीली आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैथ्स का आपको पता होगा ना डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 2x। तो अगर मैं फाइंड करूँगी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो अगर उसका स्क्वायर निकाल रहे तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी ना डिफरेंशिएट करके। हम्म आउटलायर में क्या है, इट गिव्स इक्वल वेट टू ऑल एरर्स, मतलब किसी को भी वो स्क्वायर नहीं करता, सबको एक जैसा रखता है, नेगेटिव पॉजिटिव हटा देता है, तो फिर आउटलायर इतना अफेक्ट नहीं कर पाता एरर को। RMSC में क्या है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जितनी भी स्क्वायर्ड वैल्यू आ रही है उसको हम रूट कर रहे हैं, सो दैट हमें पता चल जाए कि कितनी वैल्यू है, उसका यूनिट भी सेम रह रहा है। ठीक है, जितना आउटपुट का यूनिट है उतना ही हमारा रूट मीन स्क्वायर एरर का यूनिट है। इसलिए हम डिफरेंट मॉडल्स को, एक मॉडल हमने किसी थीटा पे कंपेयर किया, दूसरे थीटा पे कंपेयर किया, तो वो RMSE में अच्छे से हो जाता है। आई होप आपको ये तीनों मैट्रिक्स अच्छे से समझ आई हैं, और अगर आई हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। पूरा प्लेलिस्ट बन रखा है, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, एंड नेक्स्ट हम बनाएंगे वीडियो ऑन अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग पे।